اب ہم جاتے ہیں ان 3 تحفوں کی طرف، طوائف کی طرف جو خداوند کو نذرانے دیے گئے، ان کا کیا تعلق ہے؟ جبکہ وہ مجوسی ہیں، وہ شریعت کو نہیں جانتے، شریعت سے واقف نہیں۔ خروج کی کتاب ہے، احبار کی کتاب ہے، اس میں نذرانے، چڑھاوے، خشوعات، آتشین قربانی، رات انگیز آتشین قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ان کو سامنے رکھ کر یہ تحفے لے کر آتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد جس کو ہم عموماً 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم 3 بادشاہ کیا ہے، مشرق کے، ہم نے بچپن سے اس کو سیکھا۔ سونا جو ہے وہ بادشاہ کا نشان ہے، زبان کہانت کا ہے، اور وہ قربانی کا ہے، موت کا ہے۔ یہ 3 نشانات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشریحاً ایسا کیا، لیکن یہ تو آج کے لوگ تشریح کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت یہ نجومی، یہ آتش پرست جن کا تعلق مسیحیت سے نہیں ہے، جن کا تعلق نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق شریعت کی 5 کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق سلیمان بادشاہ کی ہیکل سے نہیں ہے، کس طرح سے یہ تینوں چیزیں لاتے اور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک خاص بات ہے، یہ 3 بادشاہ ہیں۔ بادشاہ جب بادشاہ کو نذرانے پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے نہیں لے کے جاتا۔ ہم آج تک کو دیکھتے ہیں سلیمان بادشاہ کے پاس کتنا تحفے طوائف لے کے گئے، بہت سارے ہیرے، جواہرات، سونے، لباس، مسالہ جات، کپڑے، بندر، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس لے کر گئی، اور وہ پھر بھی سوچتی تھی کہ سلیمان بادشاہ اس علاقے میں بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ اس کی بزرگی اتنا کچھ بھی بہت تھوڑا ہے۔ لیکن جب وہ آج سلمان سے واپس جاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو تحفے طوائف دیتے ہیں۔ کیا اصول ہے بادشاہ، یہ 3 ڈبے نہیں دیے۔ میرا خیال ہے کہ اونٹوں کے، سونے کے اونٹ ہوں گے، اسی طور پر لبان کے بہت سارے اونٹ ہوں گے، مر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں قیمتی، دار چینی ہوگا، تاج ہوگا۔ اس کا ذکر آپ آگے جا کر پڑھیں گے، دار چینی کا بھی، تاج کا بھی ہم پڑھیں گے، اور زیتون کا بھی ہم پڑھیں گے، اگر کا بھی، کیونکہ اگر ہمارے خدا کا بہت پسند ہے، جو ہم اگر بتیاں جلاتے ہیں نا، جو ہمارے کرسچن لوگ ہمیشہ منہ سر ایسے چڑھاتے ہیں، کیا ہے یہ تو غیر قومی کا، یہ ہندوؤں کا، یہ فلاں کا، یہ مزار نو۔ خدا کو اگر سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے، وہ رات انگیز آتشین قربانی کے اوپر اگر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گلہ کرتا خدا، تو نے مجھ کو اگر دینا چھوڑ دیا۔ اگر کی بہت خوشبو ہے، یہ تو آج کل مرکل ہلکا سا ڈال دیتا، باقی اس مکس نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ یہ لے کر پہلا سن جو بادشاہ کی علامت ایسے ہی، لیکن میں اس کو ذرا فرق بیان کروں۔ وہ بادشاہ کو پیش کیا گیا، لیکن وہ ہیکل کے مالک کو دیا گیا۔ ہیکل کا مالک کو یسوع مسیح نے کہا، یہ جو میں خدا کا مقدس ہوں، میں خدا کا کیا ہوں؟ مقدس ہوں۔ اور یہودیوں کو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کے 19-20 کی سائد کو پڑھیں، وہاں پر ان کو کہتا ہے یہ جو ہیکل، میں اس کو، اگر تم اس کو گرا دو تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں۔ یہ اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے
बदन को क्या कहा? खुदा का मक़दस। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मक़दस, वो खुदा के मक़दस में सोना लेकर आए, वो खुदा की हैकल, वो मक़दस है, वो मौलूद मुक़द्दस है। ऐसे पढ़े यूहन्ना 19 यूहन्ना की इंजील 2:19 है। क्योंकि उसने कहा कि ये हैकल है। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसने शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताबों से मदद और उस और को यीशु ने कहा था। हमें ये जो मजूसी है, उस बादशाह को तो नजराना देने आए हैं, लेकिन जैसे सुलेमान बादशाह ने कहा कि हैकल में क्या लेकर आओ, सुना, हुक्म दिया, क्योंकि हम जो हैकल बनाएंगे ये सारे सोने से इसको जड़ देंगे, और वहां पर जो हैकल के अंदर इल्हाम का बनाएंगे जो हमारा पड़ा है, उसका 6:19 से 22 आयत तक हम इसको देखते हैं। वहां पर जो इल्हाम गाह है, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी। इल्हाम का मतलब है खुदा का कलाम जिस जगह पर उतरता है, जिसे हम इलाही भी कहते हैं। खुदा फज़ल इलाही, खुदा का फजल। फिर हम इल्म इलाहियात यानी थियोलॉजी, खुदा की इल्म की तालीम, और खुदा ने इल्हाम गाह वहां पर बनाई जो 20 हाथ चौड़ी यानी 30 फुट ऊंची और 30 फुट की होती। उसको सोने के साथ जड़ा। ये इल्हाम गाह के अंदर क्या रखा गया? अहद का संदूक। इस अहद के संदूक के ऊपर हम ये देखते हैं 10 हाथ ऊंचे करूबी, एक इधर और एक इधर, उनके जो हाथ थे या पर थे 5 हाथ। एक हाथ 1.5 फुट का है, यानी कि 10 हाथ का एक करूबी, तो वो कितना 15 फुट का एक करूबी उसके ऊपर था। नीचे सब कुछ सोने के साथ मंडा हुआ था, जहां पर खुदा का कलाम नाज़िल होता। ये इल्हाम गाह था। इसीलिए हम इन सारी किताबों को क्या कहते हैं? इल्हामी किताबें। क्या कहते हैं? इल्हामी किताबें। ये खुदा ने नबियों पर इल्हाम उतारा था, इसलिए वो इल्हाम गाह था। वहां खुदा कलाम करता था, वहां खुदा बोलता था, इसलिए उस यीशु को ये सोना देने की, क्योंकि इलाही था, इलाही कुदरत से मामूर था, इलाही कुदरत इसके अंदर काम करती थी। ये इलाही कुदरत और रूल कुदरत से ये पैदा हुआ था। वो मामूली इंसान नहीं था। ये इल्म नजूम से जानते थे, ये जानते थे ये जो सितारा है ये आम सितारा नहीं है, इसकी रोशनी भी तेज है और ये सितारा चलता है, जबकि इल्म नजूम के मुताबिक जो सितारे हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये वहां पर आकर उसने सुना और थोड़ा सुना, इतना सुना, और सुलेमान बादशाह इस हैकल में इतना कुछ सोना लोगों ने दिया कि उससे कहा बस भाई, सोना क्या हो गया? इतना सोना हो गया था कि चांदी की वक़्त खत्म हो गई थी, और चांदी की वक़्त जो थी वो पत्थरों की मानी, उसकी कोई कीमत ही नहीं। तांबा लोहा बेवकूफ हो गया था। खुदावंद बादशाह
उस हैकल को, उस मुक़द्दस को सजदा करने के लिए। आज भी हम मसीहियों की बड़ी तमन्ना है कि हम हैकल जाए, है ना, उसे सजदा करें। अब जो दूसरी बात, सिर्फ मैं पॉइंट पर कि इनकी तफसीलात बहुत हैं। अगर मेरी इसमें मजीद तफसीलात देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप वहाँ पर लिखे वॉइस मैन गोल्ड, आपको 2 मैसेज पूरी तफसील के साथ वहाँ पर मिल जाए, जो 2022 में मैंने तफसीलन इस पर पैगामात कलीसिया होती मेरे से। दूसरा हम देखते हैं लुबान, मुझको आखिर में देखें। दूसरा क्या है? लुबान है। लुबान क्या है? इनको कैसे पता चला कि लुबान यीशु मसीह को दिया जाए? जब किसी ने तशरीह किया कि वो काहिन है, कहानत करेगा। हाँ, वो काहिन तो है, सरदार काहिन है। इब्रानी में हम पढ़ते हैं 9-10 बाब के अंदर उसकी कहानत का जिक्र पढ़ते हैं। लेकिन शरई तौर पर शरीयत में इस लुबान का क्या ताल्लुक है? इसकी खुशबू है। इसको पढ़े। इसको अनाज के तौर पर दिया जाता है। अनाज का नजराना। किसका नजराना? अनाज का। अनाज किसको कहते हैं? गंदम, है ना, जौ की रोटी। ठीक है, रोटी है ना, गंदम की रोटी या जौ की रोटी। इसराइल में जौ की रोटी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। 5 रोटी 2 मछलियां, 5 रोटियां कौन सी थी? जौ की थी। यीशु मसीह कौन? जिंदगी की। उसने खुद कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। ये सारी बातें इल्म नजूम वालों को कैसे पता चले? लेकिन मैं आपको बताऊं, इल्म नजूम वाले जो हैं, मैं आपकी इस तरफ नहीं जानना चाहता कि आप नजूमियों के पीछे घूमते हुए। हमारे यहाँ पर कई से जब मैं जवान था तो मैं देखता था ये साइंस कॉलेज के सामने 2-3 गंदे नजूमों, असल में नजूमी तो अच्छा होते, जरा में फलकियात के माहिर हो। वो अपने इल्म से बहुत कुछ हो। अब देखिए इससे क्या चीज है? इससे राहत अंगेज आशीन कुर्बानी क्या की जाती है? राहत अंगेज आशीन कुर्बानी जिसकी खुशबू खुदा को बहुत पसंद है। खुदा तो क्या है? देखिए एहबार 2 बाब उसकी पहले 2 आयत देखें। उसका टाइटल जरूर पढ़ना जी, टाइटल जरूर पढ़ना ताकि आपको पता चले आपकी बाइबल टाइटल, जिसकी बाइबल टाइटल वो पढ़े। अनाज के नजराने। मैं और आप अनाज के नजराने देते हैं। गांव में देहातों में क्रिसमस के दिन मैंने अपनी आंखों से देखे मास्टर के घर या चर्च में अनाज की बोरियां उतारते हैं। अनाज का नजराना, सोने का नजराना भी मैंने देते हुए देखा है। खुद भी दिया है और देते हुए भी देखा है। अपनी चर्च में देते हुए देखा है। जब ये चर्च बन रहा था, सोने की जंजीरें, सोने की अंगूठियां थैली में डालते हुए हमने देखा है। हालेलुया। जब वो बैतुल चर्च बन रहा था, उस वक्त भी सोने की चूड़ियां खुदा के नजराने में हमने डालते हुए देखा। कि कोई एक आध ज्यादा नहीं। आटा मैदा पढ़े जरा इसको। और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए, ये नजर की कुर्बानी। हाँ, किसी ने मुझसे सवाल किया, ये
नजरें क्या होती हैं? ये हिंदू देते हैं, ये मुसलमान देते हैं? नहीं, ये शरीयत का लफ्ज है। चढ़ावा लफ्ज किसका है? वो जी बड़े चढ़ाओगे नहीं भाई, गैर कौमों या कब्रों में चढ़ावा चढ़ाना और है, खुदा की हजूरी में नजराना पेश करना, चढ़ावा चढ़ाना हकीकी है, वो कलाम की बात है। लफ्जों पर गौर करें, सीखे जाने। रोज नजराने दे चादरां दे नजराने, फरां दे नजराने, ओदे नजराने, दुपट्टियां दे नजराने।